پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گریجویٹس ڈگری تو لے لیتے ہیں لیکن جو اس ڈگری سے ریلیٹڈ سکلز ہیں وہ نہیں حاصل کر پاتے۔ لیکن ایسا کیوں؟ ہماری یوتھ باہر کیوں جانا چاہتی ہے؟ اس ڈیجیٹل دور میں ہم ڈیجیٹل ریولوشن کو استعمال کر کے سمارٹ لرننگ کی طرف کیوں نہیں آ سکتے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ اس ایجوکیشن سسٹم کی کنسپائریسی کو سمجھیں گے اور سمجھیں گے اس اولڈ ایجوکیشن سسٹم سے کیسے ہم باہر نکل سکتے ہیں، کیسے ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اگر کسی کمپنی کے سی ای او کے لیے لازم ہو کہ اس نے اپوائنٹمنٹ کے لیے اپنی ہی کمپنی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں انٹرویو دینا ہے، تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی سی ای او ایسا نہیں ہوگا جو ہر ڈپارٹمنٹ کا انٹرویو پاس کر سکے۔ شاید کچھ سی ای اوز ایسے بھی ہوں گے جو اپنی کمپنی کے انٹرویو کے لیے ایلیجیبل بھی نہ ہوں، پھر بھی وہ پوری کمپنی چلا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سی ای او کے پاس وہ لیڈرشپ سکلز ہیں جو کمپنی چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ جب ایک کمپنی کا سی ای او اپنی کمپنی کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا انٹرویو پاس نہیں کر سکتا تو کلاس روم میں سب اسٹوڈنٹس کے لیے ہر ایک کورس پاس کرنا کیوں کمپلسری ہے؟ 100 سال پہلے کا کلاس روم اور آج کا کلاس روم میں کتنا فرق آ گیا ہے؟ آج کے کلاس روم بنا رہے ہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم۔ یہ ہے ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جانے والا سب سے کھوکھلا حصہ۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں اگر ینگسٹرز کو پراپر ایجوکیٹ کیا جائے، انفارمیشن اور امپلیمنٹیشن ہو، تو کوئی بھی ہمارے ملک کو سونے کی چڑیا بننے سے نہیں روک سکتا۔ لیکن جو ہونا چاہیے اور جو ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ڈان نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق ہماری ایجوکیشنل پرفارمنس صرف 53% ہے، اور یہ پرفارمنس ہمارے ملک کو لو کیٹیگری میں شو کرتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی اسٹڈیز پاکستان کی گئی ریسرچ کو لو لیول کنسیڈر کرتی ہیں، جس میں نہ کوالٹی ہے اور نہ پالیسی امپلیمنٹیشن۔ یہاں میرے کچھ سوال ہیں اور آئی ہوپ کہ ان میں سے کچھ سوال ان تک پہنچیں گے جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے لیے پالیسیز بنا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں جتنے یونیورسٹی گریجویٹس ہیں اتنی شاید سویڈن کی ٹوٹل پاپولیشن بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی سویڈن اور اس جیسے بہت سے ملک جن میں ناروے، سوئٹزرلینڈ، جرمنی ریسرچ اور ایجوکیشن میں ٹاپ کیٹیگریز میں آتے ہیں، اور پاکستان اس معاملے میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ ہمارے گریجویٹس ڈگری تو لے لیتے ہیں لیکن جو اس ڈگری سے ریلیٹڈ سکلز ہیں وہ نہیں حاصل کر پاتے۔ لیکن ایسا کیوں؟ ہماری یوتھ باہر کیوں جانا چاہتی ہے اور وہاں جاب کیوں پریفر کرتے ہیں؟ پولیٹیشنز، سیلیبریٹیز اور پبلک فگرز، ایون بزنس مین سب اپنے بچوں کو پاکستان سے باہر کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ اسکول ٹیچرز اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولز میں کیوں نہیں بھیجتے؟ اگر کوئی انسان انگلش بولنے میں فلوئنٹ نہیں تو یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں؟ کوئی بھی ایسا انسان جو نیو آئیڈیا اور لاجکس کی بات کرتا ہے اس کو سسٹم کیوں ڈسگریس کر کے یوزلیس سمجھتا ہے؟ اس ڈیجیٹل دور میں ہم ڈیجیٹل ریولوشن کو استعمال کر کے سمارٹ لرننگ کی طرف کیوں نہیں آ سکتے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ اس ایجوکیشن سسٹم کی کنسپائریسی کو سمجھیں گے اور سمجھیں گے اس اولڈ ایجوکیشن سسٹم سے کیسے ہم باہر نکل سکتے ہیں، کیسے ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کس نے اسٹیبلش کیا۔ آف کورس آپ کا جواب ہوگا برٹشرز نے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ برٹشرز ہم سے کیا چاہتے تھے؟ ہم پاکستانی لیڈرز بنیں یا غلام؟ ٹاپ مینجمنٹ میں شامل ہو کے ویلدی بنیں یا ہمیشہ کے لیے ان کے غلام؟ ان سب سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ملے گا۔ سٹارٹ ہوتا ہے ایئر 1757 جب سے برٹشرز نے پاکستان انڈیا پر پولیٹیکل گورنمنٹ سٹارٹ کی، اور پھر وہ چاہتے تھے اس کا مکمل کنٹرول۔ تو ان کے دو بڑے مسائل تھے جن میں پہلا مسئلہ تھا کمیونیکیشن۔ ہم بر صغیر والوں کو انگلش نہیں آتی تھی، جس سے وہ ہمیں انسٹرکشن صحیح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جس طرح ہمیں چلانا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ دوسرا مسئلہ تھا مین پاور کا، جس سے مراد وہ طاقت جس سے وہ ہمیں جو انسٹرکشن دیں ہم بغیر سوچے سمجھے ان کو فالو کریں۔ ان کو ضرورت تھی کلرکس، آفس بوائز اور فیکٹری ورکرز جیسے کاموں کی، کیونکہ ان کے پاس لیڈرز آلریڈی موجود تھے۔ انہیں چاہیے تھے ایسے لوگ جو بغیر کوئی سوال کیے ان کی انسٹرکشنز کو فالو کریں۔
तो इस मामले को हल करने के लिए थॉमस बेबिंगटन ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लॉन्च किया, जिसने इंग्लिश बोलने और सीखने का ट्रेंड स्टार्ट किया। ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन हम इस ट्रेंड को छोड़ नहीं पाए। कोई भी मुल्क इंग्लिश को हम पाकिस्तानी और इंडियंस की तरह सेलिब्रेट नहीं करता। इंग्लिश हमारे यहाँ एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, वो फैशन जो बहुत ज्यादा हद तक फैल चुका है और फैल रहा है। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना और हर लेवल पर इंग्लिश का इस्तेमाल ट्रेंड बन चुका है। यहाँ कम्युनिकेशन स्किल से मुराद आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। टॉप लेवल जॉब्स उनके लिए रह गई हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी और आर्मी में वही लोग सक्सेसफुल हैं। इस तरह जो प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाते, इसका मतलब है वो लोअर क्लास से हैं। तो ब्रिटिशर्स का पहला मसला तो हल हो गया, जो था कम्युनिकेशन। अब बारी थी दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। पाकिस्तान में अक्सर आपने सुना होगा भेड़ चाल, कि जो दूसरा कर रहा है वही काम शुरू कर दो बगैर कोई रिसर्च किए। इसे कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी। असल बात यह है कि हम में ये मेंटेलिटी होती नहीं है, बट हमें बचपन से ये मेंटेलिटी सिखाई जाती है। अब आपका सवाल होगा वो कैसे? लेट्स डिस्कस इन डिटेल। अगर आप थोड़ा ध्यान दें अपने स्कूलिंग सिस्टम पर, वो बिल्कुल फैक्ट्री जैसा है। आपकी एंट्री, लंच टाइम सब एक आवाज की बेल पर होता है। यानी स्कूल से ही आपको सिखाया जाता है कि आपने पैटर्न को फॉलो करना है। आपको डिफरेंट तरीकों से कंट्रोल किया जाता है और ये सिस्टम कंटिन्यू रहता है आपके स्कूल से लेके कॉलेज तक, फिर यूनिवर्सिटी और इवन जॉब तक। क्योंकि ब्रिटिशर्स के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी को जब लोअर लेवल स्टाफ चाहिए था, तो उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि बड़े सगीर के लोगों को स्लेवरी के लिए ग्रास रूट पर ट्रेन किया जाए। और ये याद रखें कि किसी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए स्कूलिंग मेथड और बुक्स को चेंज करना होता है, और यही हमारे साथ हुआ पाकिस्तान बनने से पहले से ही। इसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अंग्रेजों ने जो करना था करके छोड़ दिया, लेकिन हम आज तक गुलाम कौम की तरह उनके दिए गए तरीकों को फॉलो कर रहे हैं। हमारा स्कूलिंग सिस्टम आज भी आउटडेटेड चीजें पढ़ा रहा है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है a+b² = a² + b² + 2ab, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में ये कितना हेल्पफुल रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा। अब सवाल है कि दुनिया के आबादी के लिहाज से 5वें बड़े मुल्क को क्या करना चाहिए? यहाँ जो ट्रेनिंग हमें मिल रही है और जो एजुकेशन स्टाइल हमने अपनाया हुआ है वो बहुत पुराना हो चुका है, और यही वजह है कि हम दुनिया में कोई नाम बना नहीं पाए। और हमारी यंग जनरेशन को बस यही पता है कि कुछ करना है, कुछ बनना है, तो यहाँ से निकलो, पाकिस्तान से निकलो, चाहे वो मुल्क अफ्रीका ही क्यों ना हो। अब आप बताएं, स्टूडेंट्स को उनकी रियल लाइफ के लिए यूजफुल चीजें क्यों नहीं सिखाई जाती? अगर रिसर्च कर रहे हैं उसका लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो हो रहा है या नहीं? आपने कभी सोचा है कि आपका इंटरेस्ट इसमें से किस चीज में है? जैसा कि पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, कंटेंट क्रिएशन, म्यूचुअल फंड, स्टॉक इन्वेस्टमेंट। हमें सबसे बड़ा मसला होता है कि हम इनमें से कोई काम कैसे शुरू करें, मनी मैनेज कैसे करें, अपनी कंपनी को कैसे ग्रो करें, अपनी टीम को मैनेज कैसे करें, अच्छे लीडर कैसे बने, टाइम मैनेजमेंट, और इस तरह की लंबी लिस्ट है। क्या ये करना बहुत मुश्किल है? क्या अपने बच्चे को बताना ज्यादा मुश्किल है कि रॉबर्ट कियोसाकी, मार्क ज़ुकरबर्ग, वारन बुफे, माइकल डेल ने कैसे अपने एम्पायर बनाए? सिखाए जाते हैं हमें गुलामी के तरीके। एट द एंड कहा जाता है कमाना है पैसा। जब कमाना पैसा है तो उसकी तालीम और उसका शऊर क्यों नहीं दिया जाता? क्यों नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे बनता है, कैसे ग्रो होता है, कैसे डाइवर्सिफाई होता है? पिछले 10 सालों में दुनिया इतनी बदल गई है जितनी पिछले 100 सालों में नहीं बदली। आज के डिजिटल रेवोल्यूशन के दौर में रिच बनने के कई तरीके हैं, लेकिन हमें कौन सिखाएगा? हमारा सिस्टम हमें 21st सेंचुरी की गेम्स को 20th सेंचुरी के रूल्स के अकॉर्डिंग खेलने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए जरूरी है हमारी फेलियर। स्कूल स्टूडेंट्स के दिमाग को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो माइंड्स वेल फॉर्म नहीं है। इसी वजह से ज्यादातर लोग लीडर्स नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें सिर्फ क्राउड का पार्ट बनने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल कर लेगा तो सब पूछेंगे क्या जॉब नहीं लगी, नौकरी नहीं हुई? हमने देखा कि सब कुछ कैसे और क्यों शुरू हुआ। अब देखते हैं चीजें कहां तक
तक पहुंची और हमारे हालात कितने पुअर हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सब कुछ उनके स्टैंडर्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो और इसको इंश्योर करने के लिए रिपोर्ट्स कार्ड बनाए गए, डिग्रीज बनाई गई ताकि क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस चेक की जा सके। और ये कल्चर ऐसे चला कि कंपनीज डिग्री की बेस पे हायरिंग करती रही और स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल को सिर्फ डिग्री के लिए जानने लगे। आज भी न टीचर्स में एक्साइटमेंट है न स्टूडेंट्स में। और एक्साइटमेंट क्यों होगी? हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में टीचर्स को 30 से 35 लाख का मंथली पैकेज मिलता है। हमारे मुल्क में टीचर्स को 30 से 35 हजार सैलरी मिलती है। आप सोचें, जिस इंसान के कंधों पर कौम के फ्यूचर की जिम्मेदारी डाली जाए और वो भी एक नॉर्मल कंपनी में जॉब करने वाले से कम कमा रहा हो, तो उसमें एक्साइटमेंट कैसे होगी? और ना वो नई तरीके बताएगा, ना वो कोशिश करेगा कि स्टूडेंट्स को नई चीजें सिखाई जाएं। स्टूडेंट्स वही रिवायती अंदाज में पढ़ते हैं और ये सिलसिला कंटिन्यू है। अगर एक इंसान अंडरपेड है तो वो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड होगा और यही वजह है कि स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड नहीं करना चाहते, लेकिन पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया रखा गया है। मतलब टीचर्स ना खुद जी सकते हैं और ना आपको जीने देते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मेरे पेरेंट्स भी हमेशा यही कहते थे कि अमीर बनना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज वो ग्रेड 10 के सर्टिफिकेट सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यूज होता है। लेकिन मैंने जिंदगी में वो बिजनेस किए जिसके बारे में मुझे कोई एजुकेशन नहीं थी। अब सवाल ये है कि कैसे इस सिस्टम से निकला जाए। और आजकल आप कुछ अलग करना चाहते हैं और मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज चाहते हैं, तो आपको अपने आप को एजुकेट करने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको वो चीजें सीखनी होंगी जो स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं सिखाते। जो स्किल्स आपके इंटरेस्ट की है उसे सीखना शुरू करें, चाहे वो गिटार बजाना है, डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है। स्किल्स की सबसे बड़ी एग्जांपल प्रैक्टिकल एजुकेशन है, ऑन कैंपस ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट है। इसका नतीजा है कि हमारे 20% से ज्यादा ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। एमबीएस एज अ फ्रेशर, पीएन, सिक्योरिटी गार्ड, सबको लगभग एक सा पैकेज मिलता है। हमारे एकेडमिक पैटर्न की रिक्वायरमेंट्स सिर्फ असाइनमेंट्स, होमवर्क, क्लास वर्क और रिजल्ट्स हैं। स्टूडेंट्स इसे सीरियस नहीं लेते क्योंकि उन्हें इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता। और अक्सर लोग स्टडी जॉब हासिल करने के लिए करते हैं, ना कि इसलिए कि उसमें उनका इंटरेस्ट है। रिसर्च कहती है कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स जो समर इंटर्नशिप या वाइवा असाइनमेंट में प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं वो फेक होते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये कितना सच है। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि जब कंपनी का सीईओ हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू पास नहीं कर सकता, क्यों नहीं समझ सकते कि एक फिश को ट्री पर चढ़ने और हाथी को स्विमिंग सिखाने में पोटेंशियल का जिया है। और दुनिया के ग्रेटेस्ट जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को दरख्त पर चढ़ने के एबिलिटी के लिहाज से जज करेंगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी ये मानकर गुजार देगी कि वो स्टूपिड है। यहाँ मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, मैं एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ। एजुकेशन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अगर मैं एजुकेटेड ना होता तो जो चीजें मेरे जहन में आ रही हैं और मैं जो आप तक पहुँचा रहा हूँ वो ना कर पाता। लेकिन हाँ, मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूँ। वो सिस्टम जो हमें स्किल्स नहीं दे रहा, वो सिस्टम जो हमें ट्रैप कर रहा है और गुलाम बना रहा है। इससे निकलना शायद बहुत सारे लोगों के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ करना है उस हिसाब से मेहनत भी करना होगी। आपने खुद पर वर्क करना है, खुद को यूनिक बनाना है, खुद को मुनफरिद करना है। और उसके लिए ये नहीं कि आप दूसरों को देखकर खुद में तब्दीली लाओ। अपने आप को उन चीजों में मनवाओ जो आपको लगता है कि आप में वो सलाहियत है। उस एक फील्ड में, उस एक डायरेक्शन में आपको खास बना सकती हैं।